the topic ionization energy. It is also known as ionization enthalpy or ionization potential. It may be defined as the minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. Say that we have an atom A. This is isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom means it is not involved in any kind of chemical bonding or chemical combination, right? These are the cells. Let this be the outermost cell. This is the penultimate shell, and N-2. This is the anti-penultimate shell and the inner cells. Let there be an electron in the outermost cell. So this is the valence cell, valence electron or the outermost electron. So this electron is in attraction with the nucleus. It means that there is force of attraction between the nucleus and the electrons present in the outer cell. And since this electron experiences an attractive force inward, that if we have to remove this electron, we have to overcome these forces of attraction. So it means that we have to provide here some energy in order to overcome these forces of attraction. Then after we can remove an electron from the isolated gaseous atoms. So this energy, which is required to remove an electron from the outermost cell or the valence cell of an isolated gaseous atom, is known as ionization energy और ionization enthalpy. देखिए यहाँ पे जो है outermost इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. हमें इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होगा. ये जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है, दिस इज known as ionization energy or the ionization enthalpy. So ionization enthalpy is actually the measure of the tendency to form positive ions. Tendency to form positive ions, it is inversely proportional to ionization enthalpy. Here we see that if the magnitude of ionization enthalpy is higher, it means that there will be lesser tendency to form positive ions and vice versa. अगर आयनेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करेगा, वहाँ पे हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ज़्यादा है और उसे ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के लिए. तो हायर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, लेसर बी द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. सो द एलिमेंट्स हैविंग लेसर आयनेशन एंथैल्पी have higher tendency to form positive ions. ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, यानी उनमें पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. आयनेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब है उनके इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में कम है, यानी उनके ऊपर अट्रैक्शन कम लग रहा है, इसकी वजह से उनको निकालना आसान है. कम एनर्जी प्रोवाइड करके ही उनके इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ये कहलाता है ionization enthalpy. So we can say that here the magnitude of ionization enthalpy is the measure of tendency to form positive ions. The lesser be the ionization enthalpy, higher be the tendency to convert into positive ions. जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, so we have formed a positive ion here, right? So we can say that it is the tendency to form positive. Ionization energy provide करके हम positive ions का formation. Now see here there are some successive ionization enthalpies. Say when we remove one electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom, the energy provided is known as first ionization energy. For the removal of second electron from the outermost cell, the energy required is known as second ionization enthalpy. And when we remove third electron from the outermost cell, the energy required is third ionization. Say, when we compare the magnitude of these ionization enthalpies, we see that the magnitude of third ionization enthalpy is greater than that of second, and which in turn is greater than that of first ionization enthalpy. जब हम इन ionization enthalpies के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या कि थर्ड ionization enthalpy का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है सेकंड से, और वो फर्स्ट ionization enthalpy से ज़्यादा होता है. अब इसके वजह से रीज़न क्या है? क्योंकि Z इफेक्टिव, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कह रहे हैं, ये इंक्रीज करता है और साइज डिक्रीज करती है. देखिए होगा क्या, जैसे अगर हमने यहाँ पे एक केस लिया, यूनियम, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवेलेंट इमाइन, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. We see here in this case the number of proton is 13
and the number of electron is also 13. Now in this case, after the removal of one electron, the number of proton is 13, but the number of electrons becomes 12. So we see that here the proton upon electron ratio increases. Yes. And since proton upon electron ratio increases, so the value of Z effective also increases. The value of Z effective increases means there is greater force of attraction for the outermost electrons. मतलब outermost electrons के लिए attraction भी बढ़ रहा है, और जब attraction बढ़ेगा तो उनका removal difficult होगा. It means that they require higher energy or higher ionization enthalpy for the removal, यानी उस केस में ionization enthalpy का magnitude भी ज़्यादा होगा. अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि proton upon electrons का ratio बढ़ता जाएगा. Again we see here in case of Al2+, so the removal of second electron. Here again we see that the proton is 13, but the electron is 10. Again we see that the proton upon electron ratio increases further, and that's why the value of Z effective also increases to greater extent. ये भी बढ़ेगा ज़्यादा, और ये जब ज़्यादा बढ़ेगा तो ionization enthalpy का magnitude, right? तो similarly अगर आपने यहाँ से एक और electrons को निकाला, क्या होगा, proton upon electron का ratio further increase करेगा, यानी कि Z effective की value further increase करेगी. और Z effective बढ़ने का मतलब है कि outermost electrons के लिए attraction बढ़ेगा, यानी कि electron cloud contract करेगी तो size decrease करेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, outermost electrons के ऊपर attraction बढ़ेगा, उनका removal difficult होगा, यानी उन्हें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने. And that's why the magnitude of ionization enthalpy also increases. So this is the order. ये reason है. Now see what are the units of ionization enthalpies. It will be measured in kilocalories per mole, kilojoule per mole, electron volt per atom, or joule per atom. See, these are some conversion factors. 1 electron volt is 1.6 into 10 power 19 joule per atom. This is equal to 23.06 kilocalorie per mole, and this is equal to 96.49 kilojoule per mole. Right. So these are the different units of ionization enthalpies. Now see what are the factors which affect ionization enthalpies. Right. See the first factor. The first factor is effective nuclear charge. Effective nuclear charge is actually the net attraction of nucleus for the outermost electrons. Outermost electrons के ऊपर जो net attraction के ऊपर लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, effective nuclear. And effective nuclear charge is actually the difference of nuclear charge minus shielding constant. This is shielding effect or the shielding constant. So here, so if the value of Z effective increases, it means that the attraction for the outermost electron increases. यानी outermost electrons के लिए attraction बढ़ेगा, और attraction बढ़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनके रिमूवल के लिए. इसका मतलब है कि ionization enthalpies की वैल्यू बढ़ेगी. So there is a direct relation between ionization enthalpy and Z effective. So the second factor is size. ठीक है, अगर हम लोगों ने साइज ज़्यादा ले लिया, देखिए जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, that is the nuclear force of attraction, it depends upon the charge and it is inverse to distance. देखिए जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ा रहे हैं, यानी कि चार्ज बढ़ाएंगे तो Z effective बढ़ेगा, Z effective बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो ionization enthalpy का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा. लेकिन जैसे जैसे अगर आपने साइज बढ़ाई, तो साइज बढ़ाने का मतलब क्या है, the distance between the nucleus and outermost electron increases. उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और ये वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम है. अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी भी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनके रिमूवल के लिए, उनको निकालना आसान है, यानी उस केस में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसका वैल्यू भी, राइट. इट मींस दैट क्या हो जाएगा, हियर हायर बी द साइज ऑफ एन एटम, लेसर बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड स्मॉलर बी द साइज ऑफ एटम, हायर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन, राइट. तो ये है रिलेशन साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नेक्स्ट फैक्टर इज शिल्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इसे हम डिफाइन करते हैं कैसे. इट इज द force of repulsion experienced by the electrons present in the outermost shell by the electrons present in the inner cells. ये देखिए, ये हमारा एक outermost electrons है और the valence electrons, और ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है. ये देखिए, there is force of attraction nucleus and outermost electron, and the electrons present in inner cell they repel these electrons. जो electrons inner cells के अंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं penultimate shells, rest inner cells, ये क्या करेंगे, इनको repel करेंगे, और इन सब की वैल्यूज को हम लोग स्टैटस लॉ से निकाल सकते हैं. दूसरा टॉपिक है. देन
ये रिपल्शन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्रीन इफेक्ट को रिड्यूस करके निकालेंगे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से स्क्रीन का काम कर रहा है, एक शील्ड का काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर रहा है, राइट। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है, मतलब कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। तो ग्रेटर भी द शील्डिंग इफेक्ट, इट मींस दैट क्या हो जाएगा, लेसर भी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वो निकालना आसान है, और उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर जेड इफेक्टिव की यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, और ये कम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी कि हमें जो रिलेशन दिख रहा है वो इनवर्स रिलेशन, राइट। और स्पिलिंग इफेक्ट कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये है डिपेंड क्लोजनेस ऑफ पेनिट्रेट शेल टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जितना पास होगा पेनिट्रेट शेल, उतना ज़्यादा उसका सीडिंग इफेक्ट होगा। और दूसरी चीज़ हमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी पेनिट्रेट शेल्स के अंदर या सबसेल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड कम होगा। ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। ये आपको पता है कि एस की, क्योंकि अगर क्लोजेस्ट की बात करें तो एस का इलेक्ट्रॉन सबसे पास में है, देन पी, देन डी, देन एफ, यानी कि एस की शील्डिंग सबसे बेस्ट होगी, देन पी और डी और एफ की शील्डिंग सबसे ज़्यादा पुअर, राइट। और फिर क्योंकि आप सटर्स लॉ में देखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो शील्डिंग वैल्यूज होती है उनको हम डालते हैं यहाँ से। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट की मैग्नीट्यूड रहेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यूज उतनी कम होती चली जाएगी, और जेड इफेक्टिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज भी। Right. Next is subcell from which electron is removed. This is also known as penetration effect. इसको हम लोग penetration effect भी कहते हैं. Penetration effect means closeness to the nucleus. अब ये डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल से निकाल रहे हैं। देखिए, हम ये इस पर्टिकुलर एक सेल की बात कर रहे हैं, तो किसी सेल के सबसेल्स में से हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सबसेल से निकाल। अगर हमने एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, बिकॉज एस सबसेल्स, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्योंकि एस जो है सबसेल वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो इनको निकालना डिफिकल्ट होगा, यानी इनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है एस पी डी एन एफ, तो अगर हम पर्टिकुलर किसी एक सेल की बात करें तो उसमें अगर डिफरेंट सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब है कि उसमें एस के इलेक्ट्रॉन्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी देन पी देन डी। तो दिस इज नोन एज पेनिट्रेशन इफेक्ट, राइट। तो ये हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस में इसको यूज करें। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कॉन्फिगरेशन। So half-filled and completely filled configurations are extra stable, therefore have higher ionization energy. तो half-filled और extra stable configurations की stability बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे कुछ reasons हैं जिसको हम लोगों ने हमारे स्ट्रक्चर में देखा है। तो see here, if we have the configurations P3, half-filled configuration, if we have the configuration P6, right? So this is completely filled configurations. Then D5 and D10, half-filled and the completely filled configuration. Then F7 and F14. ये देखिए हाफ फील्ड और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है किसी एलिमेंट के अंदर, तो दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्सेसिबल कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, दीज कॉन्फ़िगरेशंस, एलिमेंट्स हैविंग दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिखेंगे उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत ज़्यादा होगी, राइट। सो दीज आर सम फैक्टर्स ऑन विच द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। अब इन फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड को देखेंगे, यानी ग्रुप के अंदर ऑपरेट के अंदर जब हम मूव करेंगे तो क्या ट्रेंड मिलेगा हमें, क्या वेरिएशन देखने को। तो सी द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ आयंस। सी द फर्स्ट केस, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ कैटायंस। तो अगर हम कैटायंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को चेक करें तो हमें दिखता है कि कैटायंस बनाने का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होगी तो मतलब क्या है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर, हमारे पास सोडियम है, राइट, और इससे हम लोग सोडियम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन दिस केस proton value is 11, the electron is also 11, but in this case the proton is 11 but the electron is 10. So in this case proton upon electron ratio increases, ये बढ़ रहा है। ये बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है यहाँ पे इसमें,
मतलब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दिस आल्सो इंक्रीज, राइट। सो इट मींस दैट द कैटायंस हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पीज देन द पैरेंट एटम्स और द नॉर्मल एटम्स। अगर हम नॉर्मल एटम से कंपेयर करें तो कैटायंस की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उनमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन का मैग्नीट्यूड। अब अगर हम लोग डिफरेंट कैटायंस का अगर आयनाइजेशन एंथैल्पीज कंपेयर करें तो हम देखते हैं क्या कि जैसे जैसे कैटायंस के ऊपर आप चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी बढ़ती चली जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि कैटायंस में चार्ज बढ़ाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल, और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ये पीछे हम लोगों ने केस देखा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए हमारे पास मैग्नीज है प्लस, एंड वी हैव Mn4 प्लस, देन वी हैव Mn5 प्लस, देन वी हैव Mn7 प्लस। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नीज। अगर इनमें हम देखेंगे एंथैल्पीज का मैग्नीट्यूड, तो दैट ये हमें ऑर्डर दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, द इंक्रीज इन चार्जेस ऑफ द कैटायंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीज, राइट। और उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ रहा है, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पीज का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, चार्ज ऑन अनायन। अब अनायंस के केस में अगर हम देखेंगे, अनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम उसके आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करने का मतलब है कि प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोटॉन्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो क्या कर देगा, वो डिक्रीज करेगा, और ये वैल्यू डिक्रीज करने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि अनायंस का अगर हम आयनाइजेशन थेरेपी कंपेयर करें उसके नॉर्मल एटम से, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम आएगा। और दूसरी चीज़, आप अनायंस के ऊपर जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाएंगे, तो चार्ज बढ़ाने का मतलब अगर इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर वो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हमारा कम होता जाएगा, और ये रेशियो कम होता जाएगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, यानी आयनाइजेशन थेरेपी भी कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, the increase in charge on the anions, the magnitude of ionization enthalpy decreases. So there is inverse relation, right? Now, when we compare the ionization enthalpies of cations, normal atom, anion, अगर हम ये कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कटायन की आयनाइजेशन enthalpy है नॉर्मल एटम की देन anion से। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव Cl पॉजिटिव, वी हैव Cl नेगेटिव, अगर इन तीनों में हम लोगों ने कंपेयर किया है क्या आयनाइजेशन enthalpy और देन Cl का देन Cl नेगेटिव, right? So these are the ionization enthalpies of ions and the cations. Now see the ionization enthalpies of isoelectronic species. Now isoelectronic species are the atoms and ions having same number of electrons. ऐसे एटम्स एंड आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब इन केसेस में हमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो जेड इफेक्टिव के वैल्यू को देख के हमें डिसाइड करनी है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव aluminum 3 plus, if we have magnesium ion, then sodium ion, if we have fluoride ion, if we have oxide ion, and if we have nitride ion. तो देखिए इन ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम दिख रही है 10। तो अगर इनमें हमें आयनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करना है तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम इसमें प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखें, तो इस केस में अगर प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखेंगे तो इट इज 13/10। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इट इज 10/12/10, दिस इज 11/10, this is 9/10, this is 10, and this is 7/10। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो डिक्रीज कर रहा है, यानी जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी क्या कर रही है, ऑल्सो डिक्रीजेस। और जेड इफेक्टिव वैल्यूज डिक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज का वैल्यू दिस ऑल्सो डिक्रीजेस। हमें क्या दिख रहा है कि एल्युमिनियम 3 प्लस इट हैज क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी मैक्सिमम होगी एंड दिस वन इज द मिनिमम। और उसके पीछे रीजन क्या है कि अपने यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज। एल्युमिनियम आयन दिस हैज अ मैक्सिमम आयनाइजेशन जेड इफेक्टिव, दैट्स व्हाई इट हैज नो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस तरीके से हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करेंगे, राइट। नाउ सी द ट्रेंड्स। अब हम लोग ट्रेंड्स को देखते हैं। ट्रेंड्स क्या मिलेगा हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर।
हम पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट राइट, और ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या मैग्नीट्यूड। तो सी द फर्स्ट ट्रेंड, इन द पीरियड, तो इन पीरियड वी सी एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, यहाँ पे इंक्रीज करता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज हमारी डिक्रीज करता है। तो आप पीरियड के अंदर मूव करते हो, उसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट। तो शील्डिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट होने की वजह से यहाँ पे देखिए जेड इफेक्टिव, ये है हमारा क्या, जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, साइज भी डिक्रीज करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये रीजन है इंक्रीजिंग ट्रेंड। यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शंस दिखते हैं, देखिए सेकंड पीरियड के अंदर ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो सी इन द सेकंड पीरियड, सी बेरिलियम एंड बोरॉन, देखिए बोरॉन का आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बेरिलियम की कम, लेकिन हमें दिख रही है कि बेरिलियम की ज़्यादा, बोरॉन की कम। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड दिस इज 2s2 2p1, का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें 2p से निकालना है और यहाँ से हमें 2s से निकालना है, यानी सेम सेल के अंदर यहाँ पे s सबसेल से निकालना है, यहाँ पे p सबसेल से। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट देखें यानी क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, मतलब इनके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनको निकालना डिफिकल्ट है, यानी यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। So in this case, the reason is more penetration effect in case of beryllium. और सी द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके कॉन्फ़िगरेशंस को देखिए 2s2 2p3 एंड दिस इज 2 यहाँ पे जो हमें दिख रहा है देयर इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देयर इज हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई इट हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम एंड द एल्युमिनियम, अगेन देखिए यहाँ पे 3s2 एंड दिस इज 3s2 3p1, यहाँ पे देखिए 3p से निकालना है, यहाँ पे 3s से, अगेन वी सी मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई इट हैज हायर आयनाइजेशन। एंड फास्फोरस एंड सल्फर, इस केस में देखिए देयर इज 3p3 कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इज 3p4 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए आयनाइजेशन। फोर्थ पीरियड कैल्शियम एंड गैलियम, सी हियर इन दिस केस द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2, और यहाँ पे दिख रहा है 3d10 4s2, बट अगेन हम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4c से निकालना है, यहाँ पे हमें 4s से निकालना है। So we again see here the more penetration effect in case of calcium. Calcium में penetration effect ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा दिख रही है। And next arsenic and the selenium. Here configuration is 3d10 4s2 4p3 and there is 4s2 4p4. Again फिर से हमें दिख रहा है यहाँ पे half filled stable configuration, ये रीजन इसके लिए। एंड पैलेडियम एंड सिल्वर, अगेन फिर से देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें 4d से निकालना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है कहाँ से, 5s से, क्योंकि 4d के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, इसका मतलब है कि उसको निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है। देन कैडमियम एंड द इंडियम, कैडमियम के अंदर 4d10 5s2 एंड हियर 5 4d10 5s2 5p1, अगेन पेनिट्रेशन इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ से 5p से निकालना है, यहाँ से 5s से निकालना है, तो वैसे क्या हो रहा है, मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट दिख रहा है कैडमियम के अंदर, इसलिए आयनाइजेशन थेरेपी। Then mercury and the thallium, here the configuration is 4f14 5d10 6s2 and again here 4f14 5d10 3, फिर से देखिए यहाँ पे 6p से निकालना है, यहाँ पे 6s से निकालना है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस को पढ़िए ठीक से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और ये देखिए कुछ ट्रेंड आपको दिख रहा है इस ग्राफ्स के द्वारा भी, तो स्टडी कीजिए, आपको ट्रेंड को समझने में आसानी होगी। ओके, से द ट्रेंड इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर हम लोग ट्रेंड देखते हैं, तो ग्रुप के अंदर देखिए क्या हो रहा है हमारा, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें दिख रहा है। अब डिक्रीजिंग ट्रेंड कारण क्या है उसके पीछे, यहाँ पे साइज इंक्रीज कर, क्योंकि नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनका निकलना आसान है, उनको एक कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, वो डिक्रीज, ये रीजन है हमारा। और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में हमें कोई एक्सेप्शंस नहीं दिखता है, हमें एक रेगुलर ट्रेंड दिखेगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स दिख रहे हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस दिखेंगे। फॉर एग्जांपल इन द फोर्थ ग्रुप जर्कोनियम एंड हाफनियम, यहाँ पे देखिए ये मूव कर रहे हैं हम लोग ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर मूव करने का मतलब है कि इसको डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन हाफनियम का बढ़ जा रहा है। देन फिफ्थ ग्रुप में पैनेडियम नियोबियम टैटलम, अगेन वी सी इंक्रीजिंग ट्रेंड, लेकिन होना चाहिए था डिक्रीजिंग। सिक्स पीरियड ग्रुप के अंदर देखिए क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, सी हियर देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, होना चाहिए था
डिक्रीजिंग, ये रेगुलर ट्रेंड के अगेंस्ट दिख रहा है हमें। देन 7th ग्रुप टेक्नीशियम एंड रीनियम, रीनियम का ज़्यादा दिख रहा है, टेक्नीशियम से होना चाहिए था कम। देन रूथनियम एंड ऑस्मियम, ऑस्मियम का ज़्यादा दिख रहा है। देन रोडियम एंड इरीडियम, अगेन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, होना चाहिए था कम, देयर इज एक्सेप्शन हियर। देन पैलेडियम एंड प्लैटिनम, इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, कम होना चाहिए था। देन सिल्वर गोल्ड, यहाँ पे भी जो गोल्ड का ज़्यादा दिख रहा है, कम होना चाहिए था। और ये कॉइनस मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर। इसमें जो सही ट्रेंड दिखता है वो ये दिखता है, गोल्ड सी यू एन ए जी, होना चाहिए था सी यू ए जी एंड देन गोल्ड, राइट। ये ऐसा ऑर्डर में दिख रहा है। एंड देन ग्रुप्स 12 देयर स्कैडमियम एंड मरकरी, मरकरी का ज़्यादा हो रहा है, कम होना चाहिए था, ज़्यादा हो गया है। देन ग्रुप 13 में एल्युमिनियम गैलियम के बीच में दिख रहा है क्या, गैलियम का कम होना चाहिए था, ज़्यादा हो गया। थैलियम का कम होना चाहिए था, ज़्यादा हो गया। जो सही ट्रेंड हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, बोरॉन गैलियम थैलियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 काफ़ी फेवरेट है कंपटीशन का, तो प्रॉपर्ली आप लोग देखिए। देखिए इन सब के पीछे जो आपको एक ही रीज़न दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इनमें, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होता है वो हमारा डी और एफ में इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी जो अंदर के सेल्स हैं, पेनिट्रेट शेल्स और एंटी पेनिट्रेट शेल्स, वो डी और एफ है, और इनकी शील्डिंग बहुत पुअर है, शील्डिंग इफेक्ट इसमें। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से देखिए, या न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट, ये पुअर है, और ये पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब जो आयनेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी की वैल्यू से हमें यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। ये रीजन है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग और पोर की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से तो दीज आर सम एक्सेप्शंस इन केस ग्रुप। ग्रुप के अंदर ये सारे एक्सेप्शंस को पढ़िए और इन पार्ट है। Now see here is comparison of the second and the third action enthalpy. सेकेंड और थर्ड एडिशन तलबीज के बीच में कंपेरिजन आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम्स और आपके कंपटीशन काफ़ी पूछा जाता है। तो ये बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर बेस्ड होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना है। देखिए कुछ यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स देखिए इसके अंदर। यहाँ पे सेकेंड एडिशन तलबी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कंपेयर की गई है। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन में जो सेकेंड एडिशन थेल्पीज है, यानी कि इसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एडिशन थेल्पी ज़्यादा देनी पड़ रही है इन कंपेरेटिव। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो लास्ट में दिख रहा है क्या, 2s2 4, राइट। लेकिन नाइट्रोजन में हमें दिख रहा है क्या, 2 3। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन इस पर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे ही आपने इसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, यानी हाफ फील्ड आ जाएगा। यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, इसके सेकेंड एडिशन थे नाइट्रोजन, राइट। सिमिलरली अगर आपने देखा क्या, क्रोमियम, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा, इट इज़ 3d5 4s1, और जो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, इट इज़ 3d5 4s2, राइट। आप देखिए यहाँ पे जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 4s से, आप पहला इलेक्ट्रॉन 4 निकाला। अब यहाँ पे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है वो 3d5 से निकालना है, यानी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा केस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेकेंड एडिशन थेल्पी होगी वो क्रोमियम की। लेकिन अगर आप इसी में अगर थर्ड एडिशन तक भी इसको कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको 3d5 से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, लेकिन ऐसा केस नहीं है। मतलब अगर हम थर्ड एडिशन तक कंपेयर करें तो मैग्नीज का ज़्यादा हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। देन थर्ड एडिशन तल्पीज ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की थर्ड एडिशन तल्पीज अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे, इट इज़ 3s2, लास्ट में आपको 3s2 दिख रहा है, एंड और उसके एल्युमिनियम का जो हमें दिख रहा है, इट इज़ 3s2, राइट। यानी इसके पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा नियन का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। p6 तक कंप्लीटली फिलअप है। अब अगर आपने इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना है, ये निकालना है, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये दिख रहा है हमें क्या, 1s2 2s2, यानी सारे सेल्स कंप्लीटली फिलअप है, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है इसके बहुत डिफिकल्ट। ये इसलिए कर जाए क्या, थर्ड एडिशन थेल्पीज ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम। ये सारे क्वेश्चन आपसे बनाए दिए जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो तरीके से पढ़िए, ये पूरी तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस पे बेस्ड हो, इसके लिए आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। So this is the comparison of the second and third action of different. Now see some applications of
financial enthalpy. See the first one, tendency of metals to form ionic bonds. See, tendency of metals to form ionic bonds. देखिए ionic bonds का फॉर्मेशन होता है इट इज बिटवीन द cations एंड anions. तो जिस मेटल के अंदर cations बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी. और आपको पता है कि पॉजिटिव आयंस बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा किसमें होगी, जिसके आयनिक एंथैल्पीज का मतलब क्या रिलेशन में दिख रहा है, क्या इनवर्स रिलेशन, राइट. Lesser with the ionic enthalpies means like higher will be the tendency to positive ions, and higher will be the tendency to form ionic bonds, right? Then metallic or electropositive character. Metallic or electropositive character क्या होता है? It is also the tendency to convert into positive ions. जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करते हैं, वो ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. और ये भी डिपेंड करता है आयनिक एंथैल्पीज के कम वैल्यू के ऊपर, यानी कि लेसर विद आयनिक एंथैल्पीज जाएगा हायर विद द टेंडेंसी to lose electrons, or we can say higher with the metallic or the electro, right. इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड और ग्रुप के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो दिखता है क्या कि आयनिक एंथैल्पीज का वैल्यू क्या होता है, ये इधर इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है कि ये मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे आयनिक एंथैल्पीज का वैल्यू डिक्रीज करता है, मतलब मेटालिक करेक्टर यहाँ. The next one is reactivity of metals. Reactivity of metals actually depends upon the ease of losing electrons. जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और वही मेटल आसानी से लूज करता है जिसके आयनिक वैल्यू कम होती है. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या, ये इनवर्स रिलेशन दिख रहा है. और फिर से अगर हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी, तो ग्रुप पीरियड के अंदर हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगी और ग्रुप के अंदर हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगी, राइट. द नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, इटसेल्फ ऑक्साइड होते हैं, यानी जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि उसमें जो पॉजिटिव आयंस में आसानी से कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जिनकी आवश्यकता कम होती है, वो आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यानी कि उनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, सो दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. तो फिर से देखिए, अगर फिर से मूव करेंगे तो हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा. इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको बेटर क्या देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स दिखेंगे, और आपको प्रोडक्ट टेबल में नीचे आपको बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. अगर हमने बात की फर्स्ट ग्रुप की, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, सीजियम, इनमें अगर हमने कंपेयर किया तो हमें क्या देखा, सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इस ग्रुप के अंदर ये हमारा इस राइट. एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पे, यानी मेटालिक नेचर के ऊपर. वैसे जो ज़्यादा इजिली लूज करेगा उसका ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा. सेम ट्रेंड हमें दिखेगा पीरियड और ग्रुप के अंदर. इन्वर्स दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ऑक्साइड, then we have sodium oxide, then we have potassium oxide. इनमें अगर हम इनके बेसिक नेचर को देखें, दिख रहा है क्या, कि आयनिक एंथैल्पीज का मैग्नीट्यूड नीचे आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, वो बढ़ती जाती है. इसका मतलब है कि यहाँ पे बेसिक नेचर होगा, पता चला, राइट. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी कभी कभी आयनिक एंथैल्पीज के मैग्नीट्यूड को देख के, यानी डिफरेंसेस को निकाल के हम लोग करते हैं. जैसे अगर हमें किसी भी एलिमेंट के सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड आयनिक एंथैल्पी और फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, यानी कि उनके बीच के डिफरेंसेस को निकालते हैं. और अगर हमें थर्ड आयनिक एंथैल्पीज के स्टेबिलिटी को चेक करना है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो हम थर्ड आयनिक एंथैल्पी और सेकेंड आयनिक एंथैल्पी के डिफरेंस को देखते हैं. और इस तरीके से हमें अगर फोर्थ ऑक्सीडेशन यानी फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो हम फोर्थ आयनिक एंथैल्पी और थर्ड आयनिक एंथैल्पी के डिफरेंसेस को देखते हैं. अगर ये डिफरेंस 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम आता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा स्टेबल कहलाता है. जैसे एल्युमिनियम के केस में देखिए, सेकेंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस आ रहा है 12.8, थर्ड और सेकेंड के बीच में आ रहा है 9.6, और फोर्थ और थर्ड के बीच में आ रहा है 9.6. इन सब में अगर हम देखेंगे तो सबसे कम वैल्यू हमें दिख रही है इसकी 9.6. का मतलब है कि जो तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एल्युमिनियम का, वो सबसे स्टेबल होगा. और दूसरा मतलब क्या है कि अगर ये मैग्नीट्यूड, अगर ये डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़्यादा. देखिए सोडियम केस में जो सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 42.4. बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है. मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस का मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा बनने वाला.
ये क्या हो जाएगा, सोडियम फर्स्ट तो बनेगा लेकिन सोडियम सेकेंड वो अनस्टेबल होगा, राइट। सोडियम फर्स्ट इज, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास आयनिशन का मैग्नीट्यूड है तो जैसे हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीजन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ आयनिशन एंथैल्पी। तो इसको कई तरीके से आप अप्लाई करके इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, राइट। तो ये है पूरा कंप्लीट पैकेज आपका आयनिशन एंथैल्पी। पढ़िए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए डिफरेंट वेरी मच।